کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. کہ جو رویہ ہے نا, لینگویج رویہ وہ ٹھیک نہیں ہے, باتیں ان کی ٹھیک ہیں, لیکن جب زیادہ سے زیادہ سنا ہے نا, پھر ہمیں بھی سمجھ آئی کہ ان لوگوں کو سمجھ اسی لینگویج میں آنی تھی, اسی رویے سے آنی تھی. پہلے میں بہت شرک کرتا تھا. اچھا. ہاں جی, قبروں پہ جا کے پوجا کرتے تھے, جیسے وہ پانی دھوتے تھے پھر پانی پیتے ہیں. اللہ بڑے معاملات. یہ جو لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں یہ ان کے اپنے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی ریسنٹلی ایک مفتی صاحب کہتے ہیں جی وہ تو پلانٹڈ پروگرام ہوتا ہے, بندے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اس میں. ہمارا نمبر انہیں دے دیں. اچھا. نہیں تو آپ جیسے لوگ جو بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور علماء کے ساتھ رہتے ہیں تو کیوں نہیں گائیڈ کرتے ان کو؟ آپ وہی میں کہہ رہا ہوں نا, اگر آپ ٹوٹے کاٹ کے دیکھنے شروع ہو جائیں گے قرآن میں تو وہ تو کچھ بھی بنا لیں آپ اس کو. ہاں, کچھ بھی اس کو اخلاق اور بد اخلاق بھی بنا لیں آپ, ان کو سنیں, اور اگر سن کے آپ کو لگتا ہے تو بد اخلاق ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ کے لیے آپ کچھ اور دیکھ لیں, آپ کو جو چیز پسند ہے. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں جب یہی سنا ہے, اس کے پیچھے نہیں ہوتی, اس کے پیچھے نہیں ہوتی, اس کے پیچھے نہیں ہوتی, یہ کافر وہ کافر یہ کافر, کوئی ذریعہ نہیں. ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں دیا. اپنے ہاتھ سے آپ لوگ لگا رہے ہو نا. مطلب یہ 500 کا پمفلٹ 100 روپے میں دے رہے ہو تو آپ لوگ ہاتھ سے لگا رہے ہو نا, پیسے تو ہم سے نہیں مانگ رہے ہو. بالکل صحیح. تو بس ٹھیک ہے. قیامت والے دن بھی جو ہے وہ ہر انسان کا اپنا اپنا حساب ہے. اگر میرے والدین مجھے کسی اور طرف لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ اگر وہ کسی بابوں کی بات کر رہے ہیں, جیسے مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ کسی بابوں کی یا بزرگوں کی باتیں کر رہے ہیں, تو مجھے بیسیکلی ان چیزوں پہ جو ہے وہ عمل نہیں کرنا چاہیے. دین تو ہر بندے کا اپنا اپنا ہے. یہی ان کی دین کی باتیں سن کر دین کی بات اچھی لگی ہیں. گجرات والا اتنے بڑے عالم دین ہے یار, وہ سب ریجیکٹ ہو گئے. مجھے کیا کہا تھا اس نے؟ اچھا اچھا, آپ بھی ساتھ ہی ہیں؟ پہلے میں جب آیا تھا ہاں, اس نے میری فیس بک کے وہ تصویر دیکھ کے نا تو مجھے کہا تھا تم بھی مرتد ہو گئے ہو. دلوں خوشی ہوئی ہے کہ انی عاجزی اللہ تعالیٰ انہاں نو مزید بدتمیز ہے, بد اخلاق ہے, تسی کہندے ہو عاجزی. حق بیان کرن لئی اس لینگویج دے وچ اترنا پیندا ہے. ہاں جی, او بیان کردے پے نے. پہلے بریلوی تھے, اس کے بعد دیوبندی ہوئے. بابا جانی کو نہیں سنتے آپ کراچی سے؟ بابا جانی سے تو اب جان چھڑا لی نا جب سے علی بھائی کو جب سے سنا تو پھر جان چھڑا لی ان سے. ہم نے تو ان کو برا بھلا بھی کہا ہے, گالیاں بھی دی ہیں, سب نے کہا ہے. ٹھیک ہے. تو جو علماء تھے, مولوی تھے, انہوں نے یہی کہا تھا نہ سنو یہ فتنہ ہے. کیوں نہیں سننے دیتے؟ کیونکہ یہی بات ہے کہ جو اپنا جیب گرم تھی وہ نہیں ہوگی. اصل میں نا جب سے ہم نے ان کو سنا ہے نا انجینئر صاحب کو, تو ہمیں تو جو اہل تشیع ہیں, شیعہ بھی اپنے بھائی محسوس ہو رہے ہیں. پہلے تو ہم کافر سمجھ. ایک وقت تک میں خالی اینڈ والا مرزا نام پڑھ کے ویڈیو یوٹیوب پہ آتی تھی 2017-18 میں, میں سکپ کر دیتا کہ یہ کوئی مرزائی ہے. ٹھیک ہے, بعد میں ایک ویڈیو کو میں نے چیک کیا, میں کہ چیک تو کریں اگر مرزائی بھی ہے اس نے کون سا مجھے پکڑ لینا ہے. ہم ہندوؤں کے گانے بھی تو سن لیتے ہیں. ملتے ہیں آپ کو؟ ہاں جی, یہ بھی تصویر کھینچ کے گئے ہیں. اچھا, مل کے گئے؟ ہاں جی, مل کے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو نخرے سے مل کے گئے ہیں یا نہیں, پولائٹ, بڑے پولائٹ انسان ہے وہ. اور انہوں نے لوگوں کی مت ایسے ماری ہوتی ہے. میرے جو والد گرامی وہ 80+ ہیں, ان کو ابھی تک بھی میں بیٹھ کے ساری چیز سمجھا دیتا ہوں. ساری چیز سمجھنے کے بعد بھی اینڈ پر بولتے ہیں جی بابا فرید نے جڑی کندھ ٹوری سی نا وہ بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی فرحان قریشی. مجلس اختتام تک کو پہنچ چکی ہے. آئیے اب ہم جو حال میں آئے ہوئے لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ عبدالرحمان. عبدالرحمان بھائی کدھر سے ہیں؟ میں لاہور ایمٹ سے آیا ہوں. ایمٹ سے. خیریت تھی؟
शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या करने अली आए? भाई से मिलने आया हूँ, उनका लेक्चर सुनने आया हूँ। अच्छा, बड़ी तलब थी उनसे मिलने की, क्योंकि उनकी मैंने वीडियो देखी है और मैं कन्वर्ट हुआ हूँ। पहले मैं बहुत शिरक करता था। अच्छा। बहुत, हाँ जी, कब्रों पे जाके पूजा करते थे, जैसे वो पानी धोते थे फिर पानी पीते हैं, अल्लाह बड़े अकबर। मामला। तो मैंने जब से वीडियो सुनी है तो तब से माशाअल्लाह ताला मुझे बचा लिया है, मुझे मांग की दौलत से भी पहले बहुत शिरक आपके राइड में इतना बड़ा इज्तिमा होता है, वो भी तो आपको मैं- बचाता ही है ना इनसे, इन बुरे कामों से। मैं कभी लाइफ में वहाँ गया ही नहीं, वो क्यों? बस वो कभी गया ही नहीं, कभी अच्छा, वजह अच्छा। भी गया ही नहीं। बस अली वो भाई एक को- टसल थी ना बरेलवी हाँ। देवबंदी की है। बस ये, लेकिन मैंने जब सुना अभी फिरकों में नहीं बट रहा, तब से मैंने फिरके छोड़ दिया, मुसलमान और मुसलमान लेके अली भाई की बातें सुनता हूँ। अच्छा, कैसे तारुफ हुआ अली भाई का? तारुफ कैसे मैं एक गांव से छोड़ के दूसरे गांव आया था, तो वहाँ नेट चलता यूज़ होता था। तो वहाँ जब नेट यूज़ होता तो मैंने अली भाई का क्लिप देखा, ना मैं भाभी ना मैं भाभी, मैं हूँ मुस्लिम किताबी। ठीक है। मैंने ये क्लिप तक मैंने कहा ये भाभी भी नहीं है और इल्मी किताबी कह रहे हैं, तो मैंने सुन लूँ ज़रा। उनके बाद मैं सुनना शुरू हुआ, तकरीबन मैं 4 साल उनका सुनता रहा मैं। तो काफ़ी मैं कन्वर्ट हुआ, यानी कि उससे बातें काफ़ी मुतासर हुआ और मैं फिर रोना शुरू हो गया कि मैं कहाँ गुमराही में था, इतना मैं शिर करता रहा हूँ, इतने में मामला। आपके उलमा ने आपको मना नहीं किया? उलमा कराम तो वैसे ही जब उनसे बातें करते उनको तो इल्म इतना ज़्यादा नहीं था। और यहाँ तक कि मैं इमाम मस्जिद में इमामत करवाता था मैं वहाँ, और जब मैंने रफुल शुरू किया तो सारे लोग मेरे खिलाफ हो गए। तो अब वो मुझे पहली बात मस्जिद मेरे नमाज पीछे पढ़ते ही नहीं है, लेकिन मैं उनमें जाके इमामत वैसे ही करवाते थे या आपकी ड्यूटी थी? ड्यूटी राजी कारी साहब ने कहा था जब मैं कहीं जाऊँ तो वहाँ पे इमामत करवानी है। पे तनख्वाह पे आप इमामत ही करवाते थे? जी, एक साल मैंने वहाँ इमामत करवाई। अच्छा, एक साल वहाँ इमामत करवाई, नात भी, तलावत भी, सब कुछ करता था वो। लेकिन ये है कि जब मैंने रफुल शुरू किया, निकाल दिया साहब के अभी आप भाभी हो गए हैं, आप भाभी हो गए हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। मैंने काफ़ी चीज़ें हदीस, जो मैंने हदीसों की 2 किताबें ली, अली भाई की जाकर सुनी, मैंने उनको वाज़ेह बताया भी ये हदीसें भी हैं। तो नबी सल्लल्लाहु जब इरशाद फरमाया कि नमाज ऐसे पढ़ना जैसे मैंने पढ़ी है, तो मैंने काफ़ी बातें बताई, लेकिन कहते आप तुम गुमराह हो गए हो भाई। तो ये काफ़ी चीज़ें, यानी कि अब पूरे जो गांव है ना, मैंने सबको मैंने दहत भी बातें भी की हैं, भी ये इस्लाम की ऐसे बातें हैं, लेकिन उन्होंने मानने से निकाल के दिया, मुझे इमामत से निकाल दिया। तो अब क्या कर रहे हैं? इमामत तो मैं वैसे ही करवाता था। अच्छा, वैसे ही करवाते थे। जब गाय सब कहीं गाँव जाते थे 10 ठीक दिन हो के गया, लिए, ठीक 5 दिन के लिए, तो तब मैं करवाता था इमामत। ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये, मैंने जब अली भाई की वीडियो सुनी है तो मुझे अब ये दावत और आगे लोगों को दे रहे हैं? इंशाल्लाह मैं दे रहा हूँ दावत। मेरी फैमिली में कुछ लोग रफल शुरू हो गए हैं और मैंने काफ़ी ज़्यादा मैंने ये चीज़ें भी ली हैं, ताकि मैं अपने दूसरे बहन भाइयों को सबको जाके ये दावत दूँ। अंदर कैसे मिल के आए हैं? हाँ, मिल के आऊँ, पिक्चर भी मेरी हुई है, मैंने सारा लेक्चर भी सुना है, तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला ने मुझे शिरक से बचा लिया। बड़ी ये तौहीद के मतलब मुझे जो मालूमात है वो मिल गई है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। चलो, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरा क्या नाम नाम है? जाजेब सर। जंजे भाई किधर से आए हैं? मैं कराची से आया हूँ सर। कराची से, माशाल्लाह, जी। उर्दू स्पीकिंग भाई। जी जी। खैरियत थी, क्या करने आए थे? सर बस वो काम थे थोड़े घर के, उसके है। अलावा अली भाई के फैन थे हम, लाइक फैन करते थे। ठीक है, क्यों लाइक करते थे? उनके सच बोलते हैं, उनकी वीडियो अच्छी लगती है। अच्छा, उलमाए किराम सच नहीं बोलते? सच बोलते हैं, लेकिन उनके सच में मिलावट थी। अच्छा अच्छा, इनकी तो सच सच नहीं बोलते ना। बस इनके सच इखलास वाला लगा, हाँ, इसलिए अल्लाह ताला ने दिल में मोहब्बत डाली तो यहाँ खींचे चले इससे आए। पहले कौन सा मकतबा फिक्र था आपका? मैं तो ये सबको रिसर्च किया था, जैसे अली भाई ने सबको रिसर्च किया ना। सब पहले कोई तो थे ना, बरेलवी थे, देवबंदी थे, पहले बरेलवी थे, उसके बाद देवबंदी हुए। बाबा जानी को नहीं सुनते आप कराची से? बाबा जानी से तो अब जान छुड़ा ली ना, जब से वो अली भाई को जब से सुना तो फिर जान छुड़ा ली उनसे। अच्छा अच्छा। जी जी। और आपका भी माशाल्लाह चैनल हम बहुत खुशी से देखता हूँ, माशाल्लाह आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अच्छा अच्छा, ये बताएं इंजीनियर साहब को सुनने के बाद क्या चेंज आया लाइफ में? लाइफ में सर ये चेंज आया कि नमाज तो पहले हम दुरुस्त नहीं पढ़ रहे थे, सबसे बड़ा चेंज यही है कि अल्लाह से लेने का ज़रिया ही हमारे पास दुरुस्त नहीं था। अब आप ये देखें कि अल्लाह से लेने का ज़रिया ही दुरुस्त मिल गया, तो अब सारे रास्ते इंशाल्लाह दुरुस्त ही होते जाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। तो ये है कि वीडियो देखते रहेंगे इंशाल्लाह, गाइडलाइन देते रहेंगे अली साहब। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इनकी ज़िंदगी में बरकत दे, इनके इल्म में बरकत दे, इनकी इस काम में बरकत दे, अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन, जज़ाक। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चाचू क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियासत अली है। रियाज, हाँ, बिलोंग टू पिंडी भटिया। पिंडी भटिया से। अच्छा ये बताएं इंजीनियर साहब का तारुफ कैसे हुआ था? बस तारफ तो नेगेटिव ही हुआ था,
एक यूट्यूब पर है कि वो लोगों की पगड़ियाँ उछालता अच्छा अच्छा, थोड़ा सा इस तरफ हो जाए। हाँ, लोगों की पगड़ियाँ उछाल रहा है, बड़े बड़े आलमों की, बड़े बड़े फकीया की। हमने सुना तो देखा कि उसके रेफरेंस पे कुरान और सुन्नत के मुताबिक। अच्छा, हमने उसे काउंटर वेरीफाई किया। मैं खतीब भी हूँ, मुदर्रिस खतीब भी- है? मैं खतीब भी बरेलियों का हूँ। अच्छा, अच्छा, मुदर्रिस भी हूँ, बच्चे भी पढ़ाता हूँ, दरस देता हूँ। माशाल्लाह। मैं इमाम भी हूँ, मैं मुअज्जिन भी हूँ। अच्छा, हाँ तो फिर आपको ये बातें इसकी जो थी वो हजम हो गई? जी बिल्कुल, मुझे तो हजम हो गई। मैंने तो कुरान पाक को पढ़ा है, लेकिन मेरी कौम को पता नहीं। उन बेचारे नहीं, तो आपका यकीन जितना करते- बरेलवी मकतबा फिक्र है, आपके और जो उलमा वो भी मान के सारा कुछ? जी उलमा नहीं मानते ना, उलमा तो नहीं मानते, अवाम मानती है। अच्छा अच्छा, अवाम जो है ना, हाँ, उनको आप तो उलमा बेचारे- से नहीं है? और उनको पता ही नहीं है। अच्छा अच्छा, उनको तो कहो 2 और 2 5 होते हैं तो वो 5 बता देंगे, 2 + 2 = 4 होते हैं तो बेचारे अनपढ़ लोग हैं। नहीं तो आप जैसे लोग जो बरेलवी मकतबा फिक्र से तल्लक रखते हैं और जी, जी। उलमा के साथ रहते हैं, तो जी, क्यों नहीं जी। गाइड करते उनको? हम गाइड कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, अवाम को गाइड करेंगे, उलमा को तो छोड़ दें। अगर हम किसी पीर को कहेंगे कि यार ये लोगों को क्या बता रहे, तो उसका पेट है, उसकी रिज़्क रोटी से जुड़ी हुई है। आपकी नहीं थी? नहीं नहीं, मुझे तो इस चीज़ से लालच है। सही मैं हो तो गया, सही हो 14 साल खिताबत भी की थी, इंशाल्लाह मेरे हाथ साफ है। मैं माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल की बारगाह में जब अल्लाह की जाऊंगा तो माशाअल्लाह। मैं तो यही कहूँगा कि मैंने अल्लाह ताला सुने तेरी ज़ात वास्ते तू पैदा किया, तेरा हक मैं तेरे दी तबलीग की थी, मुस्तफ़ा दी सुन्नत नूं उजागर की माशाअल्लाह। और इंशाल्लाह ताला क़यामत दे दिन हजूर दे कदमां नूं चुम के आखांगे सोने तेरे नां ते सारी जिंदगी गुजार रहे हैं सुन्नत माशाल्लाह वास्ते। माशाल्लाह। फर्स्ट टाइम आए इधर? जी हाँ, फर्स्ट टाइम। कैसा था प्रोग्राम आज? कैसा जी, प्रोग्राम देखा आज? प्रोग्राम बहुत अच्छा था। मैंने तो आप 4-5 महीने से भी ज्वाइन किया हुआ है इंजीनियर साहब ठीक को, है। फिर बरेलियत भी होते सब मामलात हैं। और इंशाल्लाह ताला आज मैनू एक फैसिलिटी भी मैं हुणी सुनिया है कि मिशकात मुसाबिता सेट भी मैनू मिले दा। हाँ 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 उलमा नूं जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इंशाल्लाह ताला मैं इसकी तबलीग करांगा और मुर लोगों को काउंटर वेरीफाई कराया। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, किधर से आए हो? गुजरावाला से। खैरियत थी, क्या करने आए थे? मैं सर अली साहब से मिलने आया था और ठीक काफ़ी है। इंस्पायर था इनकी वीडियोस। क्यों इंस्पायर थे? क्या करते हैं? ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं दीन के लिए। मेरी भी ख्वाहिश है कि हम भी ऐसा काम करें, दीन की इस्लाह करें, अपनी इस्लाह करें। इनका तारुफ कैसे हुआ था? इनका तारुफ ऐसे वीडियोस स्क्रॉल कर रहा था टिकटॉक पे, तो इनका तारुफ हुआ तो सुना, काफ़ी अच्छा लगा। पहले मैं डॉक्टर इसरार साहब को सुनता था, तो उनके बाद लाइव देखने का भी एक्सपीरियंस रहा अली साहब को, काफ़ी अच्छा लगा। तो काफ़ी इंस्पायर हुआ मैं अपनी लाइफ में पहले जो सी गुजारी है, तो उससे मैं ज़रा काफ़ी मायूस हूँ, लेकिन अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ कि मैं अच्छा फर्स्ट टाइम आए थे? फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा, आज का प्रोग्राम सारा देखा? जी सर। कैसा था प्रोग्राम आज? बहुत अच्छा रहा, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं अपने दोस्तों को भी लाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, ताकि वो भी अपनी इस्लाह करें, क्योंकि ज़िंदगी का अक्सर क्यों मायूस क्यों थे? मायूस था, मतलब कि ज़िंदगी जो उस पहले गुजारी है वो ठीक नहीं गुजरी। क्या क्या किया उस जिंदगी नहीं, में? मतलब शिर्क किया? नहीं, शिरक कोई नहीं तौबा किया तो खत्म हो गया हाँ, ना? वो तो ठीक है, तौबा की। बस ये है कि होता है ना, बंदे को रिग्रेट होता है कि यार मैंने जो कोई बात नहीं, जो आगे पड़ी हुई है उसके बारे में हाँ, सोचो। वो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बेहतर करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ने काफ़ी साथ दिया, तो इंशाल्लाह अल्लाह साथ ही दे। चल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान? सैयद अली रज़ा बुखारी, माशाल्लाह। अली भाई किधर से आए? लाहौर से। लाहौर से। क्या करने आए थे? दावत के लिए आए थे, दावत के लिए। कि दीन के बारे में कुछ सीखने आए थे। माशाल्लाह। लाहौर से इधर? जी जी। आगे तो हम लाहौर जाते थे। बस जी, अल्लाह सबको हिदायत दे। दुनियावी कामों में तो हम लगे रहते हैं, लेकिन दीन के लिए निकले हैं कि कुछ सीख सकें और आगे दीन को फैला सकें। इनका तारुफ कैसे हुआ था? सर, यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, ठीक है, तो काफ़ी इंस्पायर्ड था, मिलने की भी ख्वाहिश थी और लाइव देखने की कि मतलब कैसे फील होता है। अच्छी क्या देखा आज? बहुत अच्छी बातें बताई हैं, बहुत कुछ सीखा भी है। इखलाकियात कैसा है? इखलाकियात बहुत अच्छा है, यहाँ अच्छा। का सिस्टम बहुत अच्छा है एकेडमी का, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। उलमा तो कहते हैं जनाब बंदे भी इसके अपने होते हैं, नहीं, सवाल भी अपने होते हैं, मैनेजमेंट बहुत अभी अच्छी है। रिसेंटली एक मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा सारे बंदे अपने मुफ्ती साहब ऐसे ही कहते हैं, लेकिन जो मेन थिंग है वो ये है कि ये अपने पास से बातें नहीं करते जैसे मुफ्ती हजरात करते हैं, ये किताबी बातें करते हैं जो कुरान और हदीस की रोशनी में होती हैं। तो उसी चीज़ को इंस्पायर्ड किया है इन्होंने, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए और बहुत अच्छा लगा और मिलके भी बहुत अच्छा लगा। आगे इंशाल्लाह इनको फॉलो करते रहेंगे और अच्छी अच्छी बातें आगे भी हम फैलाते रहेंगे दीन की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या नाम है? आसिफ तनवीर। आसिफ भाई किधर से आए हैं? मैं लाहौर से। लाहौर से। खैरियत थी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करने आए थे? हम आए लाहौर थे- जाते थे आगे। नहीं हम आए थे जेलम, आपके हाँ। शहर। हमने कहा इंजीनियर साहब से मुलाकात भी करेंगे इंशाल्लाह और उनका दर्स भी सुनेंगे। इंजीनियर साहब का तारुफ कैसे हुआ? यार ये मेरे नेगेटिव था पॉजिटिव था? नहीं था पॉजिटिव। मेरे वालिद साहब ने मुझे वो किया था, तारुफ दिया। इससे पहले इनका। कौन सा मसलक था आपका? कोई मसलक नहीं था, हम पहले भी किसी मसले को फॉलो यानी नहीं कोई करते कट्टर नहीं थे? नहीं ठीक, और ठीक। तकरीबन इसी तरह की यही रुझान था जो सही है, इंजीनियर सही साहब है, का ही सही है, सही है। तो बट ये है कि जब से इनको सुनना शुरू किया तो बहुत से जो कन्फ्यूजन थी और मसलन कौन सी कन्फ्यूजन थी? यार जो रेगुलर मसाइल होते हैं नमाज के, ज़कात और ये बाकी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक क्लियर भी हो गई। और दूसरा कुरान से जो शगफ है वो बहुत बड़ा है कि माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र ये है कि अब जो कुरान इंसान की जो सीरीज़ है वो भी कोई 70 से ज़्यादा एपिसोड देख ली हुई है। और अल्लाह ताला हिम्मत दे, इस्तकामत दे, इंशाल्लाह कंप्लीट करें। और फिर दूसरी चीज़ अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक देता ये है। फर्स्ट टाइम आए आप इधर? यहाँ फर्स्ट टाइम। कैसा था एक्सपीरियंस? कैसा है? सुना पहला काफ़ी कुछ था, experience। सुना काफ़ी कुछ था और वैसे ही पाया। क्या सुना था? यही कि बड़ी चीज़ें मैनेज्ड हैं और सारा कुछ और वैसे ही पाया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टाफ है, लाइक मैं तो उनको खराज तहसीन दूँगा कि जिस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं, कीपिंग व्यू के इतने सारे लोग हैं, जगह थोड़ी है बट स्टिल उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस तमाम चीज़ को मैनेज रखा हुआ है। उनका इखलाक बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी। और आपको पता दीन में हमारा दीन ही इखलाक का दीन है। ऐसे तो नहीं तो उलमा तो कहते हैं ये तो बद इखलाक है, इसको तो बात करने की भी तमीज़ नहीं है, उलमा के साथ ये बदतमीजियाँ करता है। आपने क्या देखा है ऐसे करता है? आप वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप टोटे काट के देखना शुरू हो जाएंगे ना हाँ, कुरान हाँ, में तो वो तो कुछ भी बना लें आप उसको। हाँ, कुछ भी बना उसको लें। इखलाक और बद इखलाक भी बना लें। आप उनको सुने और अगर सुन के आपको लगता है तो बद इखलाक है तो ठीक है, फिर आपके लिए आप कुछ और देख लें, आपको जो चीज़ पसंद है। माशाल्लाह। अंदर गए थे पिक्चर बनवाते हाँ जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गई। मिले आपसे? हाँ जी मिले, मुलाकात भी हुई थी। चंदा शंदा भी दिया कोई नहीं दिया? चंदा क्या देना, उन्होंने चंदा को भी मांगेगा। एंटी चंदा खुद है वो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वालेकुम क्या नाम है सर? मोहम्मद सजाद। सजाद भाई किधर से आए हैं? कामों की से जिला गुजरात। कामों की जी। खैरियत थी? क्या करने आए थे? बस मुर्शद पाक को देखने आए थे। मुर्शिद पाक। कौन से मुर्शिद पाक? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। अच्छा, ये कैसे मुर्शिद बन गए? बस ये पिक्चर अच्छी इस्लाम की जो है ना वो पेश कर रहे हैं, फिरकों से हट के है ना, और किसी को तकफीर नहीं कर रहे कि ये काफर है वो काफर है, सबके पीछे नमाजें। ऐसे ही है। जब से हम पैदा हुए हैं जब यही सुना है, इसके पीछे नहीं होती, उसके पीछे नहीं होती, इसके पीछे नहीं होती, ये काफर वो काफर ये काफर। बिल्कुल यही सुना है। ठीक है, तो ये एक सच्चा और सुथरा जो है दीन पेश कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि ये इस्लाम ये है, जितने भी फिरके वाले हैं ये सब आपके भाई हैं। तो इनको जो रियल इस्लाम है उसकी तरफ ये मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन उलमा मना करते हैं ना, उलमा कहते हैं इसको सुनना ही नहीं है। वो असल में ना वो जो स्लोगन है इंजीनियर साहब का, द डैमेज हैज़ बीन डन, उनका खतरा है उनको कि दुकानदारी बंद हो रही है ना, बंद हो रही है दुकानदारी। हाँ, ये उनकी दुकानदारी बंद हो से रही है। मना कर देते हैं, वो कहते हैं सुनना ही नहीं है इसको। वो ये ऐसे ही मुझे है। लोगों से फीडबैक मिल रही होती है, वो कहते हैं जी पहले सुनते थे, कारी साहब को तो उन्होंने मना कर दिया। असल में ना जब से हमने इनको सुना है ना इंजीनियर साहब को, तो हमें तो जो अहले तशी हैं शिये भी अपने भाई महसूस हो रहे हैं। पहले तो हम काफिर समझ रहे थे। मुझे क्या कहा था? माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। बिल्कुल सही। पूछा मुझे क्या कहा था इसने? अच्छा अच्छा, आप भी साथ ही हैं? पहले मैं जब आया था हाँ। इसने मेरी फेसबुक के वो तस्वीर देख के ना हाँ। तो मुझे कहता तुम भी मर्दाद हो गए हो। आप इनसे पूछो ये भी हो गया। अच्छा जी, ये ना आपने कहा था जी मुर्तद हो गए। पास दी गया हमारे। अच्छा। हमारे भी दोस्त हैं। अच्छा। तो इनका जो बेटा है हम उसके भी दोस्त हैं। ठीक है। तो इनसे मोटिवेट करने के लिए असल में ना इन्हीं की काविश है जहाँ तक हम इधर पहुँचे माशाल्लाह, हैं। ठीक है, तो ये मैंने शुगलन बात की थी। अच्छा। लेकिन तो काफ़ी अरसे से हम सुन रहे थे। पहले मेरा सारा ख़ानदान जो है ना वो बरेलवी था। फिर अल्लाह ने ये लगन थी कि इस्लाम की, कि रियल इस्लाम क्या है। फिर आज से तकरीबन 20 साल पहले 2001 में मैं अलहदीस हो गया। तो जब से इंजीनियर साहब को सुना है, अब फिरके हैं या फिरके खत्म? अब फिरके तो बंद हो रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारा ही नहीं है, ये सभी के बंद हो रहे भाई से भी हैं। बात करें। जी। वही जोगी भाई कहते हैं फिरकों की दुकान बंद, द डैमेज हैज बीन डन। द डैमेज हैज बीन डन। Done। ठीक होगा। नहीं, आपका पहले कौन से फिरके से तल्लुक था? अहले हदीस। अहले हदीस से। लेकिन अब खत्म कर दिया? नहीं मतलब
नमाजें तो हम उधर ही पढ़ते हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इख्तिलाफ फिरका नहीं करते वाली किसी से, सही है, इख्तिलाफ नहीं करते। लेकिन जहाँ पे आप नमाजें पढ़ते हैं वो उलमा तो बड़ा इख्तिलाफ करते हैं। अकीदा तौहीद वाला मामला तो उनका बहुत अच्छा था। हाँ। अब इनके अजीज भाई को सुनने से बैत की मोहब्बत भी आ गई, सही हो गया, से मोहब्बत भी आ गई, सही हो गया। तो पर अल्लाह का शुक्र है, जिसकी जो चीज़ अच्छी लगती है उसको दे रहे हैं। इख्तिलाफ बिल्कुल सही है, बिल्कुल इख्तिलाफ सही। नहीं करना, बस बिल्कुल बात सही। खत्म, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त किसी को ज़्यादा फोर्स नहीं करते, वो कहता पता नहीं क्या हो गया है। जब खुद इधर आता, खुद सुनता, उसका दिल में आता तो आ जाता है। बिल्कुल मैं भी 3 साल से सुन रहा था, आज मौका भाई के साथ चांस फर्स्ट टाइम आया? फर्स्ट टाइम आया। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज? बहुत जबरदस्त। आज की प्रोग्राम पूरी निशिश देखी आपने? मैं बेहतरीन शुरू से एंड तक बैठा रहा हूँ। अच्छा। हाँ सुबह 8 तो बस यहाँ पे नाश्ता किया, बराबर अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है। अच्छा, ये जो आवाम बैठी हुई थी, ये जो लोग आए हुए हैं, ये इनके अपने हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली मुफ्ती साहब ने इल्जाम लगाया कि अपने बंदे होते हैं, सवाल अपने होते हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ, और इन्होंने पूछा कि जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम है हाथ खड़ा करें। 90% लोग फर्स्ट टाइम थे। फिर अली भाई खुद कह रहे हैं कि जो एक दफ़ा आगे दोबारा ना आए, ताकि नए बंदों को मौका मिले। तो यही चीज़ें होती हैं, शातें होती हैं। सबसे बड़ी बात ये कि पैसे कमाने का कुछ जरिया नहीं है, कोई जरिया तो नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया। अपने हाथ से आप लोग लगा रहे हो ना। मतलब ये 500 का पंपलेट 100 रुपये में दे रहे हो, तो आप लोग हाथ से लगा रहे हो ना, पैसे तो हमसे नहीं मांग रहे हो। बिल्कुल सही। तो बस ठीक है, यही होता है। पर अकीदे ठीक हो गए हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। असल में ना सबसे बड़ी बात यही है, अल्लाह कबूल कर ले। अभी ना जो सबसे बड़ा एतराज़ है ना, सारे एतराज़ इंजीनियर साहब ने ख़त्म कर दिए हैं। हमें भी ये एतराज़ था कि जो रवैया है ना, लैंग्वेज रवैया वो ठीक नहीं है, बातें इनकी ठीक हैं, लेकिन जब ज़्यादा से ज़्यादा सुना है ना, फिर हमें भी समझ आई कि इन लोगों को समझ इसी लैंग्वेज में आनी थी, इसी रवैये से आनी थी, फिर ये इन्होंने समझना था। ये ज़बरदस्त है। 95% अवाम को नेगेटिव तारुफ हुआ है, जब वो सुनता है उसको ठीक देखता है, यार बातें सारी दलील से हो रही हैं, तो बात खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसे। तो अपने मौलवी से जाके पूछे कि उनका दलील ही नहीं है, तो बात खत्म हो गई ना। बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भैया? फुरकान अली। फुरकान, किधर से आए हो? मैं बेसिकली जंग से हूँ, लेकिन अभी इस्लामाबाद में स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर जी, अभी इस्लामाबाद से। स्टूडेंट? जी सर। खैरियत स्टूडेंट हो, और इधर झेलम में क्या कर रहे हो? बस अली भाई के सेशन के लिए आए थे। उनको सेशन, इनका तारुफ कैसे हुआ था? इनका तारुफ वीडियो देखी थी करबला का तारीख़ पस मंज़र का, और उसके बाद फिर करबला का, ठीक है। फिर वहाँ से काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हुई, उसके बाद और इनकी वीडियोस देखी, तो काफ़ी जो चीज़ें फिर मैंने काउंटर वेरीफाई भी, रेफरेंसेस मैंने चेक किए, तो बिल्कुल मतलब एज इट इज़ जैसे इन्होंने बोला वैसे ही था। तो काफ़ी मामलात में देखा तो इन्हें मतलब सच्चाई पे पाया मैंने। नहीं, इनको क्यों देखा? इसके अलावा और जहाँ पे नमाज पढ़ते हो मौलवी साहब और मोहल्ले में मुफ्ती साहब, वो नहीं बताते? नहीं, एक तो वो कहते हैं ना कि जिस तरह इंजीनियर साहब कहते हैं वो अपने फ़िरके की तबलीग देते हैं, क्योंकि मैं बताते खुद हर किसी के पीछे जो है ना, मैं इतना वो हम कटर वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि सही है। तो इसलिए मैं हमारे फिरका वारियत से पहले ही तंग थे। हाँ, पहले इस चीज़ से जो है ना वो अवॉइड करते थे कि जो है ना, लेकिन इंजीनियर साहब को जब सुना तो वाकई उनकी बातों में एक उनका जो पैशन है बयान करने का अंदाज, उनकी बातें, फिर जब वेरिफिकेशन हर चीज़ की, तो बिल्कुल नो डाउट बिल्कुल ये ट्रू था हर चीज़। फर्स्ट टाइम आए थे जी? कैसा था आज प्रोग्राम? माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत रूहानियत थी, बहुत मज़ा आया आज माशाल्लाह जो है ना। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हमजा अलवी नाम है मेरा। हमजा, माशाल्लाह। हमजा कहाँ से आए हैं? लाहौर से आए जी। लाहौर? लाहौर किधर से? लाहौर इलामा इकबाल टाउन में रहायश है हमारी। ठीक हो गया। हमजा आप करते क्या हो? मैं सर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ, फ्रीलांसर हूँ मैं जी। माशाल्लाह। और यहाँ पे क्या करने आए हो? मुझे जी इनका अकीदा बड़ा अच्छा लगता है। जो इनका कौन सा अकीदा है? इनकी मैं बताता हूँ ना, ये इनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने कुरान और हदीस को आगे लेके चलना है। बिल्कुल सही। और अकीदा तौहीद को जो है जिस तरीके से ये प्रेफर करते हैं, मुझे ये इनकी क्वालिटी अच्छी लगती है। और कोई फ़िरका वारियत के अंदर ये नहीं जाते, लेकिन अपने आप को कहते हैं कि भाई हम जो है वो मुसलमान कहलाएं, ना कि कहें वाबी हैं, ना कोई हम कहें कि सुन्नी हैं, शिया हैं। हम मुसलमान के तौर पे जो है ना वो आगे अपने आप को लेके चलें, और अल्लाह के नबी का जो दीन है, जो कुरान और हदीस हमें सिखाती है, उसको फॉलो करते हुए लेके चलें। तो मुझे ये इनका कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, और मैं इनको बड़े टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, इनकी वीडियोस देखता हूँ, अपने घर वालों को भी दिखाता हूँ। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, और इनका काम से बड़ा मुतफ़िक़। आज अब हमें हो क्या गया है, अब तो हम ये सोचते हैं कि भी जिसका फ़िरका नहीं है वो ठीक होता है। इससे पहले तो ऐसे सोचा भी नहीं जाता था, हमेशा फ़िरका होना चाहिए था। ऐसे ही है ना, पहले हम कहते थे फ़िरका, हमारे दिमाग में भी नहीं कभी आया। सर देखिए, दीन की कमी है,
नॉलेज नहीं है, इस्लाम की कमी है, हम इस्लाम के लिए टाइम नहीं निकालते। देखें सारी चीज़ें जो हैं आपको हमारी किताबें हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम कुरान मजीद का मुतालिया करें, तो ये सारी चीज़ें कुरान मजीद के अंदर भी हैं। और जो चीज़ें अगर हमें कुरान मजीद में हमें नहीं भी अच्छे तरीके से अगर समझ आती तो उसको जो है वो आपको हदीस के तौर पे जो है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। तो ये अल्लाह ताला की किताब और अहदीस को फॉलो करते हुए मेरे हिसाब से तो हर चीज़ ही जो है वो आप लोगों को क्लियर हो जाती है हर लिहाज से। अच्छा, आपने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया, अकायद क्लियर हो गए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स भी आई? नहीं, कोई दोस्तों की तरफ से कोई मामलात ऐसे? मेरे फैमिली को मैंने जब ये कहा था कि देखें कुरान और हदीस की बात करते हैं, मेरे वालिद साहब ने भी मुझे कहा कि बस ठीक है, आप अगर ये कुरान और हदीस की बात करते हैं तो आप इनको फॉलो करते जाएं। तो इस लिहाज से मुझे घर वालों की तरफ से तो कोई भी पाबंदी नहीं है। और देखें क़यामत वाले दिन भी जो है वो हर इंसान का अपना अपना हिसाब है। अगर मेरे वालिदैन मुझे किसी और तरफ लगाते हैं, ठीक है, और मुझे पता है कि अगर किसी बाबों की बात कर रहे हैं, जैसे मिर्ज़ा साहब भी कहते हैं कि किसी बाबों की या बुज़ुर्गों की बातें कर रहे हैं, तो मुझे बेसिकली उन चीज़ों पे जो है वो अमल नहीं करना चाहिए। दीन तो हर बंदे का अपना अपना है, हर बंदे ने अपना अपना जो है वो अमाल का हिसाब देना है। तो इसीलिए मुझे अपने आप पे जो है वो देखना पड़ेगा कि भाई मेरे लिए रास्ता क्या ठीक है। हर बंदे ने अपना जो है वो कब्र में हिसाब देना है। अंदर गए थे पिक्चर बनवा के आए? नहीं, मैं अभी जाने लगा हूँ। चलिए, ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान? शफाकत अली। शफाकत भाई किधर से आए हैं? गुजरावाला। गुजरावाला में आगे भी भाई आए हैं, को गाड़ी भर के तो नहीं लेके आए? नहीं, सारे अलग अलग हैं। अच्छा, कैसे आना हुआ? यही इनकी दीन की बातें सुनकर दीन की बात अच्छी लगी हैं। गुजरावाला में इतने बड़े आलम दीन है यार, वो सब रिजेक्ट हो गए। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि ये जो बता रहे हैं वो कुरान हदीस के हवाले दे रहे हैं। उधर तो वाबी भी अहले हदीस भी बड़े जोर में है और वो भी बड़े दावेदार हैं। सबकी अपनी अपनी दुकान, वो भी बड़े दावेदार हैं कि हम भी वाले बड़े तगड़े देते हैं। इज्जत तो अल्लाह ने देनी है ना। इज्जत तो अल्लाह ने देनी है, जिसको भी दें। बेशक ऐसा ही है। आपका पहले कौन से फिरके से तल्लक था? फिरका से तल्लक है था तो था ना, लेकिन था रहा नहीं। तारुफ कैसे हुआ था इंजीनियर साहब के, कैसे लाइफ में आए? तारुफ तो हुआ था, हमने तो इनको बुरा भला भी कहा है, गालियाँ भी दी हैं, सब ने कहा है। ठीक है। तो जो उलामा थे, मौलवी थे, उन्होंने यही कहा था ना सुनो ये फितना है। क्यों नहीं सुनने देते? क्योंकि यही बात है कि जो अपना जेब गर्म थी वो नहीं होगी। नहीं, तो अपने इल्म पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि भी इसके सुनने से वो बंदा गुमराह हो जाएगा। यही तो बात है, वो अपना इल्म बताते रहे हैं। इल्म तो बताएं दीन का। फिर मजा जब इल्म आया तो बाकी बात नस गया ना। इल्म तो अब आया, वो तो अपना इल्म बताते रहे हैं ना कि आओ भाई खत्म कराओ हमें हमारा। बिल्कुल ऐसे उन्होंने ये जो अपना इल्म था वो दिया है। तो इंशाअल्लाह अब ये जो बता रहे हैं कुरान हदीस पे, ये तो पता चल रहा है। हम भी अपना कारोबार, दुकानें, फैक्ट्रियाँ छोड़ कर आए हैं। किसी आज की पूरी नशिस्त देखी आपने? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा प्रोग्राम था? बहुत अच्छा था। ये जो लोग आए हुए होते हैं, ये इनके अपने होते हैं कि नहीं? अभी रिसेंटली एक मुफ्ती साहब कहते हैं जी वो तो प्लांटेड प्रोग्राम होता है, बंदे बिठाए हुए होते हैं उसने। हमारा नंबर उन्हें दे दें। अच्छा, हम गाइड कर लेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो जो आग लगी हुई है ना, वो इंशाअल्लाह थोड़ी देर ही है, सारे इंशाअल्लाह जल जाएंगे। जो जल जाएंगे, बिल्कुल 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 इंशाअल्लाह। दीन पर काम होगा और दीन की बात होगी। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? अली रज़ा। अली भाई खैरियत थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किधर से आए हैं? गुजरावाला से। गुजरावाला, आज तो भर के आया हुआ गुजरावाला। बस मोहब्बत है उस्ताद जी की। उस्ताद जी से मोहब्बत है जी। उस्ताद जी बना लिया गुजरावाला ने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह जी। गुजरावाला में तो बहुत बड़े उस्ताद फिरते हैं, उनका क्या करें? उस्ताद तो बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन जो हक की बात, दलील की बात और बड़े बड़े दावेदार हैं यार। हैं, लेकिन कोटर वेरीफाई जो करते हैं ना सही और ज़ईफ का, वो बहुत कम है। और अगर हैं भी ना तो वो डंडी मारते हैं बड़ी सी बातों में, जैसे मामू की बात हो गई या और जो बड़े मामलात हो गए, और फिरके को लेकर चलते हैं। इन्होंने फिरके को आज़ाद किया और उसके बाद कुरान हदीस से मजबूत कर दिया और रिश्ता उनसे बनवाया है जिनकी कब्र मदीने में। बेशक ऐसा ही है, बेशक। अंदर गए थे पिक्चर बनवा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मिले इंजीनियर साहब? अच्छा, क्या लगता है किसी और भी बड़े आलिम दीन से मिलना इतना ही आसान है जिस तरह इंजीनियर साहब बैठ के लोगों से मिल रहे हैं? भी नहीं। अच्छा, कोई आलिम दीन आए भी ना तो उसके साथ 10 जो है ना सिक्योरिटी गार्ड होती हैं जो उनके करीब भी नहीं जाने देते। दूर से भी तस्वीर खींचो ना तो वो खुद कह देता है यार मोबाइल को नीचे कर लो, या और बड़े जो मामलात ने। लेकिन इन्ना तो मैं वेख्या कि दिलों खुशी हुई है कि इन्नी आजजी
اللہ تعالیٰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਉਲਮਾ ਦੇ ਇਸਤਕਾਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਬਦ اخلاق ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ। ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। बहुत शुक्रिया। वालेकुम क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम चांद अली। चांद अली, माशाल्लाह। चांद भाई किधर से आए? मैं सर लाहौर से आया हूँ। लाहौर भी आज काफ़ी बंदे आए हैं। हाँ जी। आगे हम लाहौर जाते थे यार, अब आप आ रहे हैं क्यों? ये बस अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अल्लाह ताला जहाँ पर कोई हक की चीज़ रखता है तो लोग उधर अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, मैं रात को 2:30 बजे का निकला हुआ हूँ, ठीक है, और सुबह 7:30 बजे इधर पहुँचा हूँ, और अल्लाह ताला इस चीज़ को कबूल करे। आमीन आमीन कबूल करे। अच्छा 7:30 पहुँचे, रात पूरा सफ़र किया? जी मैं रात का सफ़र। इंजीनियर साहब को मिलना था, इनका तारुफ कैसे हुआ था? इनका तारुफ जैसे सबको तकरीबन हुआ है, नेगेटिव ही हुआ है, गालियाँ निकालते रहे। जी मैंने तो पहले वो मिर्ज़ा, एक वक्त तक मैं खाली एंड वाला मिर्ज़ा नाम पढ़ के वीडियो यूट्यूब पे आती थी 2017-18 में, मैं स्किप कर देता कि ये कोई मरज़ई है। ठीक है, बाद में एक वीडियो को मैंने चेक किया, मैं कि चेक तो करें, अगर मरज़ई भी है उसने कौन सा मुझे पकड़ लेना है, हम हिंदुओं के गाने भी तो सुन लेते हैं। ठीक है, तो वो जब पहली वीडियो मैंने देखी तो उसमें मुझे कुछ चीज़ नज़र आई। फिर मेरी ना शुरू से गंदी आदत है कि कोई भी चीज़ मैं एक दफ़ा देखूँ ना, उसको शुरू से लेके एंड तक मैं चेक करता हूँ। और माशाल्लाह फिर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को उस टाइम से लेके अब तक जितनी भी वीडियो आ चुकी हैं ऑलमोस्ट मैंने सारी देखी हैं। माशाल्लाह। क्या लगता है उनको सुनने के बाद क्या फ़र्क आया, क्या क्लियर अकायद, कैसे कैसे अकायद क्लियर हुए, तौहीद में क्या फ़र्क आया? अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे रास्ते खोले हैं कि मैं तो हैरान था कि हम जो पहले जिन रास्तों पे चल रहे थे वो बिल्कुल इनके अपोजिट हैं, और उन पे हम बड़े मुतमिन थे कि वो बिल्कुल सब कुछ दुरुस्त है। दरबार पे जाएं, ठीक है, मैं बेसिकली बिल्कुल जो कट्टर सुन्नी है ना उनमें से बिलोंग करता हूँ, और इन्होंने लोगों की मत ऐसे मारी होती है। मेरे जो वालिद ग्रामीण वो 80+ हैं, उनको अभी तक भी मैं बैठ के सारी चीज़ समझा देता हूँ। सारी चीज़ समझने के बाद भी एंड पर बोलते हैं जी बाबा फरीद ने जी कंध टोरी सी ना वो बिल्कुल जायज़ है। ठीक है, यानी कि उन्होंने शुरू से माइंड सेट ही ऐसा बनाया हुआ है कि जो उन्होंने बोला है वो जायज़ है। अगर जैसे गुस्ताखी करेंगे ना तो पता नहीं क्या अभी क़यामत टूट पड़नी है किसी बाबे की गुस्ताखी कर दी तो। मैं ये चीज़ मानता हूँ जितने भी बाबे हैं उनका अदब करें, लेकिन जिन चीज़ों पे करने वाला है, अगर कोई चीज़ गलत आती है, वो किसी के बारे में भी आती है, उसको हम डंके की चोट पे गलत बोले। बेशक बेशक। अंदर गए थे? जी जी मैं बिल्कुल गया हूँ। जी जी। क्या लगता है लाहौर में बड़े बड़े आलिम दीन हैं बैठे हुए, उनसे भी मिलना इतना आसान है? नामुमकिन है जी किसी और से मिलना, और जितने अच्छे अखलाक से हाल अहवाल इतने शॉर्ट टाइम में सारा कुछ मैनेज करना, सब कुछ आपकी जो टीम है उसको भी सलूट है, कितने मुनज़्ज़म तरीके से सिक्योरिटी का सारा निज़ाम संभाला है। उसके बाद वो जितने तरीके से हर बंदे को मिलते हैं, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे बड़े भाई मुझसे बात कर रहे हैं। चलो जी, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। सर वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है भैया? अब्दुल राफे। अब्दुल राफे जी। अब्दुल राफे भाई किधर से आए हो? मैं इधर पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो मैं जब अपने इलाके में वापस ज़िला शेखपुरा से बिलोंग करता हूँ। शेखपुरा? शेखपुरा तो बदमाशों का शहर भी कहा जाता है। नहीं, आप शरीफ हो गए। अब शरीफ हो गए? सारे शरीफ हो गए। अच्छा, तो मैं जब उधर से आता था तो मुझे लोग पूछते थे कि उधर मिर्ज़ा जलमी है, तो उससे कभी मिला है? तो मैंने कहा मिल लेंगे। हाँ, टाइम लगेगा तो मिल लेंगे। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैंने ना इधर आके हदीसों का मुताला शुरू कर दिया। मेरे मोबाइल में ऐपें वगैरह हैं, मैंने हदीसें पढ़नी शुरू कर दी। ठीक है। तो उसके बाद मैंने ना जो रेफरेंस लेना है ना जो हदीसों का, वो मिर्ज़ा जलमी की, मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ना वो जो वेबसाइट है ना, या जो यूट्यूब पे लेक्चर है उनसे लेना, तो वो सही परफेक्ट होते हैं। अच्छा, परफेक्ट होता है। हाँ, मैं बस रेफरेंस लेता और अपनी हदीस पढ़ लेता और अपने आप को उसके मुताबिक डाल लेता। तो उसके बाद मुझे रेफरेंस इनका मिला, तो लड़के ने कहा चलो यार मैं आपको मिलवा के लाता हूँ, ये इधर जेलम के स्टूडेंट हैं, इधर क्रैशी हैं इधर के, तो फिर ये इधर मुझे ले आए। अच्छा, आप इससे पहले कौन से मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखते थे? जी मैं फिरका तो नहीं कहूँगा यार थे ना, हदीस को फॉलो करते तो इस वजह से हमें अहले हदीस कहते हैं। आपको तारुफ इंजीनियर साहब का जब हुआ जी, आपने इसको इजीली मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि आप
वैसे ही तालिब इल्म थे, कुरान और हदीस के तालिब इल्म थे, कोई परेशानी पेश तो नहीं आई? नहीं, मुझे जब मैंने पहली दफ़ा इनका लेक्चर सुना तो फिर मैंने तस्लीम कर लिया। उसके से पहले तो मैं ये मानता था कि जो खुद पढ़ना है, हमारे जो उलमा हैं उन्होंने जो हमें बताना है वो सही तरीके से नहीं हमें फॉलो, हमें किसी पेज की तरफ नहीं बुलाते। हमें कोई एक पेज पे बुलाने वाला है तो वो जो हदीस पे सही मेंशन करता है और हदीस का रेफरेंस दे के बुलाता है तो वही बंदा ठीक है। तो फिर मैंने जब इनका लेक्चर सुना तो इन्होंने हदीस का रेफरेंस दिया, उसके बाद मैं इनको फॉलो। माशाल्लाह। आज फर्स्ट टाइम आए? हाँ जी, फर्स्ट टाइम है अभी। और वो जो दोस्त था वो जो कहता था उधर मिर्ज़ा जेल में है, उसको बताएंगे क्या सुना? उनसे मैं आज स्टेटस लगाऊंगा, आज मैंने उनसे मुलाकात की है, मैंने तो पिक्स ली है उन्होंने मेरे साथ, तो मैं स्टेटस लगाऊंगा तो उससे मुलाकात। कैसा एक्सपीरियंस था आज की मुलाकात? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने हमारे साथ इस तरह का कंप्रोमाइज़ किया जैसे हमारे बड़े भाई हैं, हमारे जैसे अच्छा सलूक किया, और उन्होंने हमारे से सलाम दुआ की, और स्पेशल खाने का भी इंतज़ाम रखा हुआ है उन्होंने कि ताकि इधर ज़्यादा लोग आएँ। कहीं कुछ लोग आते हैं कि खाने पे आते हैं और कुछ लोग आते हैं वैसे ही आ जाते हैं कि मतलब दीन की तलब के लिए। तो हर तरह के बंदा इधर आएगा, जो दीन की तलब के लिए आएगा वो भी आएगा, जो खाने की तलब से आएगा वो भी आएगा, और कुछ सीख के जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो उन्होंने हमारे साथ बड़े भाई जैसा सलूक किया और हमें दीन पे चलने की तलकीन की है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? फिजान। फिजान जी। आपका? तैयब। तैयब। इकट्ठे आए हो? जी। दोस्त हो? जी। भाई हो? क्या हो? दोस्त है। किधर से आए हो? मैं जेलम से ही हैं। और आप? जेलम ताज रोड। क्या करने आए थे? खुतबा सुनने। खुतबा कौन सा? जो उन्होंने भी दिया। अच्छा, बयान सुनने। बयान। अच्छा, इनको कैसे जानते हो, कब से जानते हो? मुझे तो नहीं था पहले। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम आया, आप लेके आए हो? जी। आपको तारुफ कैसे हुआ? मैं कज़न के साथ आया हूँ अभी, जो डिसेबल आपने देखे भी हैं शायद। हाँ 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 हाँ, वो उनके साथ हैं, उनकी वजह से। अच्छा अच्छा, वो भी झेलम से हैं? नहीं, वो सियालकोट से हैं। वो सियालकोट से हैं? जी। ठीक हो गया। तो वो आपको लेके आए हैं? जी, फर्स्ट टाइम वो लेके आए थे तकरीबन 2-3 माह पहले। उसके बाद आपने सुनना शुरू कर दिया या अभी भी उन्हीं के लिए आए हैं? नहीं, अभी उनके लिए आए हैं बस। अच्छा, वो किधर है? वो अभी उधर बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए। उनसे बात कर सकते हैं? जी ले, अगर ये। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जैन। जैन भाई, किधर से आए? सियालकोट से। सियालकोट से? हाँ जी। अच्छा, ये आपका बचपन से ही मसला? जी, बचपन से ही है। और फिर भी इतनी जो है हिम्मत और जो ऊपर इतना चढ़ के आगे भाइयों को फोर्स किया होगा कि मुझे लेके जाओ। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, कब से इनका तारुफ हुआ? अली भाई का? हाँ। अली भाई का तारुफ मुझे 2019 में, 4 साल पहले। 4 साल पहले? हाँ जी। कैसे हुआ? वो मेरे एक कज़न ही सुनते थे तो उन्होंने मुझे क्लिप भेजा, तो फिर मैंने सुनना शुरू कर दिया। बात समझ में आ गई? हाँ। वो कैसे? बस इतने बंदों को नहीं आ रही? बस आ गई दिल पे। क्या बात है जो दिल पे लग गई? बेसिकली वो बस यही कहते हैं कि जी क्या उनके बारे में, लेकिन कोई ऐसी बात जो दिल पे लगी इनकी? उनकी जो एक बात मुझे दिल पे लगी है ना, वो ये है कि वो नमाज की पाबंदी बताते हैं कि नमाज की जो पाबंदी करो, ठीक है, और अल्लाह से मदद मांगो, और ऐसा ही बस। अच्छा, अभी यहाँ पे आपके जेल में कोई कज़न है, वो आपके साथ आए हुए हैं? हाँ जी। अच्छा, वो मैं भी उनसे बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि हमारे भाई सियालकोट से आए हुए जी, सियालकोट हैं। इनको भी फिर बताया, इनको भी दावत दी? जी बिल्कुल। हाँ, तो क्या रिएक्शन है इन लोगों का? ये पॉजिटिव रिएक्शन है। पॉजिटिव रिएक्शन, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अपने घर का क्या सूरत हाल है? वहाँ पे भी वो दावत असर दिखा रही है? बिल्कुल ऐसा ही। हाँ जी, मेरे वजह से सब पे अटैक कर रही है। कोई ऐसी बात जो इंजीनियर साहब से आप करना चाहें, कोई मैसेज जो उनको देना चाहें? इंजीनियर साहब से बस ये कि उनको बहुत पसंद करते हैं। अच्छा। और उनसे मिलने की बार बार ख्वाहिश होती है, तो तीसरी दफ़ा मैं आ चुका हूँ। मिलते हैं आपको? हाँ जी, अभी तस्वीर खींच के गए हैं। अच्छा, मिल के गए? हाँ जी, मिल के गए हैं। ठीक होगा। कोई नखरे से मिल के गए या? नहीं, पोलाइट, बड़े पोलाइट इंसान है वो। अच्छा, पोलाइट इंसान। हाँ जी, सही है। चलो जी, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।